Very good morning, children. I'm so happy to interact with your class 6. And welcome back to me, as all of you knows also to me. So I just hope you are, I just expect that you are also will be happy to see me. So yes, children, we are here to teach you. I'm here to teach you SST. Social study. Social study is a subject which relate you with the society. It is a subject, beta, which relate you with the people, which tells you about your history, what our ancients are doing. Okay, and your class, in which class you all are, which is the class 6, and your class is something very very new, as you all are coming from class 5. So earlier this is something, these subjects are very new exposure for you, and your session was start very earlier, and I know you all are very much now adjusted with your curriculum, with your syllabus, with your all work. सभी चीज़ों से आप बहुत अच्छे से एडजस्ट हो चुके हैं. सो आई नो इट्स वेरी फाइन कि आपने सभी ने एडजस्टमेंट कर लिया है. ओके, सो चिल्ड्रेन, I am today in this video बच्चा discussing with you the history part, our ancient, our past events. Okay, history part. Now in that history part, you all have covered up to the chapter 6. Chapter 6 तक आपने cover कर लिया. In this video I am starting the chapter 7. Okay, chapter 7 में start कर रही हूँ आपके history में. So while watching the video, you should have your book. Some of the important thing, you should have a copy, you should have a pen. While watching the video, you can note it down some of the important points which you feel that it is important to be noted down. And the most important, try to understand the thing very properly, very attentively. Okay, while watching the video you should be very attentive. Okay, and not while watching the video, in the class also you should be very attentive. Otherwise आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा. तो आपको अटेंटिव होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. चलिए, सो chapter 7, I think it is visible to you. New questions and ideas. New questions and ideas. Okay, this is your chapter. Okay, children. Okay, so new question and ideas. Now, what this chapter is all about? So this chapter first of all started with the story of the Buddha. Okay, it has started with the story of the Buddha. Fine. So Buddha, I think this is the person, I think everybody knows about it. You all knows about it. Story of the Buddha. Buddha जिसे कहते हैं गौतम बुद्ध. And Gautam Buddha is also known as Siddhartha. Okay. So the first point is Gautam Buddha, who
हम सिद्धार्थ भी बोलते हैं। इनका पहले नाम, अर्लियर हिज नेम वाज Siddharth. So some of the points I had discussed with you, that I started discussing with you the Gautam Buddha, who is also known as Siddharth earlier. Okay, so Siddharth also known as Gautam, the founder of Buddhism. Okay, the first point we are discussing about the Gautam Buddha children. Gautam Buddha or Buddha. Okay, just correct the spelling everyone. ठीक है? Okay, Gautam Buddha. It is visible to you all properly? Yeah. So first point is, he is also known as Siddharth. He is also known as Siddharth. Second point, he was the founder of Buddhism. Gautam Buddha, Siddharth, founder of Buddhism. ठीक है, बुद्धिज्म के फाउंडर हैं. Third, he was born about 2500 years ago. Okay, so सिद्धार्थ इनका नाम था, यही थे जो कि बुद्धिज्म के फाउंडर थे, एंड ही born about 2500 years ago. This was a time rapid change in the lives of the people. 2500 साल पहले की बात हो रही है, एंड 2500 बिफोर लोगों की लाइफ में बहुत से चेंजेस आए थे, बहुत से चेंजेस. ठीक है, एज यू सॉ इन द चैप्टर 6 ऑल्सो, some kings in the Mahajanpad were growing more powerful. Okay, new cities were developing and life was changing in the villages as well. villages में भी जो लोगों की, गांव में भी जो लोगों की लाइफ थी वो भी बदल रही थी. इस समय की मैं बात कर रही हूँ. I am talking about Gautam Buddha time, and at this time the life of the village peoples are also changing, as well as the new cities are developing. Many thinkers were trying to understand these changes in society. Many thinkers were trying to understand these changes in society. बहुत से लोग ये सोच रहे थे कि कैसे ये चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में. They also wanted to try and find out the true meaning of life. लोगों, मतलब ये भी एक कंसर्न था. This is also a point. Okay, so we are getting so many points. First, Gautam Buddha is known as Siddharth. Gautam Buddha is the founder of Buddhism. He born about 2500 years ago. ठीक है, he born about 2500 years ago. Okay, he born about 2500 years ago. And at that time, उस समय, at that time, इसी समय, so many changes are coming. At that time, so many changes are coming. So many changes are coming. क्या क्या changes आ रहे थे? Okay, क्या क्या changes आ रहे थे? What are the changes are coming? Okay, cities are developing. शहर बदल रहे, डेवलप हो रहे थे. Cities are developing.
Okay, changes in the village also, changes in village, गांव में भी चेंजेस आ रहे थे। लोग सोच रहे थे कि कैसे, what is the true meaning of the life, they want to trying to understand the changes in society। ये मतलब सी अंडरस्टैंड वर्ड क्यों यूज किया है, क्यों यूज किया है बच्चों? आप तो बच्चों ये जानो और इन चीज़ों को समझो। जब भी कहीं कोई बदलाव आता है, चेंजेस आते हैं, तो चेंजेस को समझने में टाइम लगता है। तो वहाँ के लोगों को भी जब व्हेन एवरीथिंग इज चेंजिंग, शहरें बन रहे हैं, विलेजेस भी का भी रूप पूरी तरह से बदल रहा है, तो उन चीज़ों को एवरीथिंग को समझने में दे आर ट्राइंग इट टू अंडरस्टैंड इट, उसको समझने में उन्हें समय लग रहा था। एंड दे वर ऑल्सो थिंकिंग टू अंडरस्टैंड द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ट्रू मीनिंग, सही अर्थ क्या है लाइफ का, ये नहीं समझ आ रहा था। ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ का ट्रू मीनिंग क्या है, असली मीनिंग क्या है लाइफ की, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग, व्हाट इज द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। सो प्लीज़ चिल्ड्रेन, आप इससे स्क्रीनशॉट ले लो या इन पॉइंट्स को एज अ नोट्स अपनी कॉपी में आपको लिखना है। यू डू नॉट हैव ओनली हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइजेस तो आपको करने ही करने हैं, बट इन्हें भी आप नोट्स की तरह लिखते रहेंगे एज अ क्लास वर्क। ओके, तो एट दैट टाइम सो मेनी चेंजेस आर कमिंग एंड पीपल आर फाइंडिंग द ट्रू मीनिंग, सही अर्थ क्या है लाइफ का, लाइफ है क्या, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइफ, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ रहे हो रहे बच्चों, यहाँ तक गौतम बुद्धा, उनका टाइम, ही बॉर्न 2500, ये 2500 साल पहले ये चीज़ें हो रही थी लोगों के साथ। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे बदलाव के साथ एडजस्ट करें, कैसे उसको समझें। ओके, ट्रू मीनिंग फाइंड कर रहे थे वे लोग। द मेनी थिंकर्स आर देयर, दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द चेंजेस इन द सोसाइटी एंड दे वर ट्राइंग टू फाइंड आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ लाइफ। सो आई एम रबिंग दिस बोर्ड एंड आई एम मूविंग अहेड। आई थिंक यहाँ तक आपको दिस पैरा यू ऑल विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। Now, next points लिखेंगे इसी तरह। Buddha means the Gautam Buddha belonged to a small Gan known as the Satya Gan. Satya Gan belonged to a small Gan. एक गण से वो बिलोंग करते थे, बहुत छोटे से गण से, और इसे बोला जाता था सत्य गण। प्लीज ये याद रखिए, सत्य गण से ये बिलोंग करते थे, सत्य गण, ठीक है। एंड वॉज अ क्षत्रिय, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट कि गौतम बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे वो। गौतम बुद्ध क्या थे, क्षत्रिय थे, ठीक है। When he was a young man, he left the comfort of his home in search of knowledge. ज्ञान क्या है, नॉलेज क्या है, ज्ञान क्या है, आप क्या समझते हैं ज्ञान क्या है। उसकी सर्च में उन्होंने बहुत ही कम एज में अपने घर के कंफर्ट को छोड़ दिया था। ही वॉज अ किंग, वो राजा थे, सिद्धार्थ, राजा सिद्धार्थ के नाम से उनको जाना जाता था। बाद में वो गौतम बुद्ध बने ना, गौतम बुद्ध वो बाद में बने, उनको बाद में द अर्लियर उनके प्रीचिंग से, उनके टीचिंग्स की वजह से, उनकी फिलोसफिकल थिंकिंग की वजह से उन्हें गौतम बुद्ध का नाम दिया गया।
बट अर्लियर ही यूज्ड टू हैव अ थिंग, उन्होंने अपना राज्य छोड़ा. हु डज इट? नाउ जनरेशन में आप किसी से बोलेंगे एनीबडी कैन डू इट? नॉट पॉसिबल. नोबडी वॉन्ट्स टू लीव देयर कंफर्ट जोन. एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी कंफर्टेबल. तो उन्होंने अपना कंफर्ट छोड़ा. कंफर्ट, राजा, एक राजा को हर एक सुविधाएं दी जाती हैं, हर एक फैसिलिटी दी जाती है. वो छोड़ के उन्होंने बहुत ही कम एज में ही वेंट आउट इन सर्च ऑफ नॉलेज. ज्ञान, ज्ञान की खोज में निकले वो. ठीक है. He wandered for several years, meeting and holding discussion with other thinkers. Wandered means कई सालों तक वो इधर उधर घूमे. Okay, and he wandered for several years and have so many suggestion and discussion with so many thinker. Thinker क्या होते हैं? मतलब at that time there are so many thinkers. There are so many people who think about the things. Okay, ऐसे बहुत सारे लोग थे. तो क्या हुआ कि तो उन थिंकर्स से वो इंटरेक्ट करने लगे, डिस्कशन करने लगे. कब? आफ्टर लिविंग द होम एंड आफ्टर वंडरिंग हियर एंड देयर. He finally decided to find his own path to realization and meditated for days on end under a peepal tree at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment. वहाँ पे ही उन्हें enlightenment मिला, जिसकी सर्च वो कर रहे थे. आफ्टर वंडरिंग so many years, आफ्टर वंडरिंग several years, नॉलेज की सर्च में निकले थे. सालों इधर उधर घूमने के बाद, ठीक है, सालों इधर उधर घूमने के बाद क्या किया उन्होंने? आफ्टर वंडरिंग सो मेनी ईयर्स, सेवरल ईयर, उन्हें इनलाइटमेंट मिला. कहाँ मिला? पीपल ट्री के नीचे मेडिटेट करते करते और रियलाइजेशन करते करते एट बोध गया इन बिहार. तो ये प्लेस आप याद रखिए जहाँ पे उन्हें एनलाइटमेंट मिला. ये अक्सर पूछता भी है. बोध गया, बिहार, वेयर ही हैव एन एनलाइटमेंट. एनलाइटनमेंट. ओके, एनलाइटन, एन पढ़ते हैं इसको, एनलाइटनमेंट. ओके, बोध गया बिहार में इन्हें एनलाइटनमेंट मिला, नॉलेज मिली, सर्च मिली, जिसकी वो सर्च कर रहे थे. आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज द बुद्धा और द वाइज वन. अब देखो, नाउ ही वॉज सर्चिंग फॉर द नॉलेज एंड फॉर सर्चिंग द नॉलेज ही इज वॉन्डरिंग हियर एंड देयर, एंड आफ्टर वॉन्डरिंग हियर एंड देयर ही गेट after wandering here and there, he finally get his search over, and that search is over in Bodh Gaya, Bihar. And after that he is known to be as the गौतम बुद्धा और द वाइज वन. इसी के बाद उन्हें ये नाम दिया गया बुद्धा. ये जो बुद्धा का नाम है ये इसी के बाद उन्हें दिया गया कि बुद्धा. ही देन वेंट टू सारनाथ. इसके बाद उनकी जो जर्नी थी, यहीं पे इनलाइटमेंट के बाद इनको बुद्धा का टाइटल मिला. नाउ तो आप जर्नी समझ रहे हैं बच्चों क्या थी गौतम बुद्धा की. अभी तक में व्हाट वी ऑल हैव डिस्कस, वी डिस्कस गौतम बुद्धा हु इज द किंग हु इज अर्लियर नोन एज सिद्धार्थ. ही बॉर्न बिफोर मतलब 2500 years ago. At that time so many changes came
and at a very young age he left his home and went for the search of knowledge. Meanwhile, he discussed with so many thinkers, and by he was a Kshatriya. He belonged to the गण साक्य गण से वो belong करते थे, ठीक है. Now in the search of knowledge he goes to the Bodh Gaya, Bihar. There he got an enlightenment and he get the title of Buddha. Now afterward, इसके बाद he went to the Sarnath, Varanasi. He then went to Sarnath near Varanasi. You all are aware about the Sarnath. Nobody is there कि आप aware नहीं हैं. Where he taught for the first time. सारनाथ में उन्होंने अपनी पहली, गौतम बुद्धा ने, इसीलिए that is why सारनाथ is very famous, क्योंकि वही वो प्लेस है जहाँ बुद्धा ने अपनी सबसे पहली टीचिंग्स की. द फर्स्ट टीचिंग सारनाथ में. ठीक है. He spent the rest of his life traveling on the foot, going from place to place, teaching people till he passed away at Kushinara. पूरी लाइफ उन्होंने हर जगह गए, प्रीचिंग दिया, अपने टीचिंग्स दिए, and with a spear he spent the rest of his life traveling on foot. मतलब he doesn't use any kind of vehicle in his whole life. कहीं भी वो जाते थे वो चल के जाते थे. He spent whole life traveling on foot, पैरों पे चल के जाते थे, going from place to place, teaching people, and he passed away at Kushinara. Kushinara is the name of the place, और यहाँ पे ही इनका डेथ हुआ. It is a place of death of Gautam Buddha, Kushinara. Means throughout the life he doesn't use any kind of vehicle. Wherever he wants to go, he go on his foot. So motivational life of the Gautam Buddha, that he is the person who left all his comfort zone and just went out for the search of knowledge. See children, now you all have to see. You all are in class 6 beta. Now you will move forward toward the other class. So बच्चा सीखो. You all are on the learning stage. सीखिए and motivate होइए in stories से. And these all are not something, those stories which are modified, which you find on the media, on the internet, and which are for the entertainment purposes only. Okay, these are the story of a real people, those who have done this one. Okay, ऐसा किया है लोगों ने, and that is why they become famous, and that is why you are reading them. See, we read those people who does something. Okay, हम उन्हीं को ही तो रीड करते हैं ना, अदरवाइज उनको रीड नहीं करते जिन्होंने कुछ भी नहीं किया. तो we are reading about him, so obviously it was something done by them. Now just study more about the Buddha. Please ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लो. पॉइंट्स जो भी मैं दे रही हूँ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप सभी के लिए. ये पॉइंट्स आपको हेल्प करेंगे आपको रिकॉल करने में, आपको याद करने में. अच्छा, हमने क्या क्या पढ़ा था बुद्धा के बारे में. एंड वीडियो अगर आप ये देखोगे और पॉइंट्स लिखोगे तो ये इमीडिएटली आपके माइंड में रिकॉल हो जाएगा. कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप सभी को बच्चों को याद कर लेने हैं. बच्चा गौतम बुद्ध, उन्होंने घर अपना छोड़ दिया था, अपने कंफर्ट छोड़ दिए थे, फिर वो
बोध गया में उन्हें नॉलेज मिला और वहाँ पे उन्हें बुद्धा का टर्म दिया गया। देन वो सारनाथ आए, उनकी फर्स्ट टीचिंग सारनाथ में हुई थी, ओके। और कुशीनारा में उनकी लास्ट थी प्रीचिंग और डेथ प्लेस था वो। स्लोली ही वंडर्ड सो मेनी प्लेसेस, कई जगह गए थे, कई जगह। एंड वेरेवर ही गोज ऑन हिज फूट, ही डजंट यूज एनी काइंड ऑफ व्हीकल और एनीथिंग, ओके। सो ये सारी चीज़ें आपको रिकॉल करने में ये पॉइंट्स ही हैं जो हेल्प करेंगे। चलो, आई एम रबिंग द पॉइंट्स विद द होप कि आपने इसे नोट डाउन कर लिया होगा। चलो आगे। द बुद्धा टॉट दैट, बुद्धा ने ये सिखाया कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस। दिस इज कॉज बिकॉज वी हैव क्रेविंग एंड डिजायर विच ऑफन कैन नॉट बी फुलफिल्ड। सी, उन्होंने लाइफ की मीनिंग सर्च की एंड इट वॉज वेरी ट्रू। उन्होंने ये कहा कि लाइफ जो है पूरी तरह से सफरिंग और अनहैप्पीनेस होती है। हम हमेशा सफ़र करते रहते हैं, हमेशा अनहैप्पी रहते हैं। क्यों? क्योंकि वी हैव अ क्रेविंग। क्रेविंग का मतलब लालच, एक तरह से आप कह सकते हैं। लालच है हमारे अंदर, डिज़ायर्स हैं हमारे। वी हैव अ क्रेविंग्स एंड डिज़ायर। बहुत आप कह सकते हैं हम लोग बहुत महत्वाकांक्षाई हैं। पीपल यानी हम लोग नहीं, आज के लोग बहुत महत्वाकांक्षी हो रहे हैं। मीन्स बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं डिज़ायरफुल पर्सन हो रहे हैं। हर एक चीज़ चाहिए। वी रिक्वायर्ड एवरीथिंग, वी रिक्वायर्ड एवरी कंफर्ट, ओके। सब चीज़ आपको मिला होता है, वी हैव ईच एंड एवरीथिंग, स्टिल वी आर अनहैप्पी। वाई? वी थिंक ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं है। वी focus on those things which we are not having. We do not focus on those things which we are having. Yeah, it is the reality of life. हम उन चीज़ों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, उन पे नहीं करते जो हमारे पास हैं। We are equipped with all our body part. There are so many people in the world, उनके पास तो वो भी नहीं है। हाँ, somebody is blind, somebody is deaf, somebody is physically handicapped, somebody is mentally handicapped. What about them? What about them? Still you find them very happy. आप उन्हें हैप्पी बहुत देखेंगे, पर हमारे पास एवरीथिंग हो के हम हैप्पी नहीं हैं। वी आर नॉट हैप्पी। सो ये गौतम बुद्धा ने कहा कि हमारी लाइफ फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस है, बिकॉज वी हैव अ क्रेविंग्स, वी हैव अ डिजायर जो कभी फुलफिल नहीं होती हैं और हम हमेशा रोते रहते हैं। Sometime even if we get what we want, we are not satisfied and want even more. अभी मैंने बताया और चाहिए हमें। The Buddha described this as thirst और तन्हा। इसी को उन्होंने बोला थर्स्ट, मतलब प्यास बोलते हैं ना, जैसे जो थर्स्टी होते हैं, प्यास लगती है। प्यास कभी थर्स्ट, ये थर्स्ट क्या है, कभी ये जो है ये कभी आपका एंड नहीं होता। दिस थर्स्ट डजंट एंड, एंड इसे गौतम बुद्धा ने कहा तन्हा। तन्हा, ठीक है, तान्हा। तान्हा थर्स्ट जो है ये कभी एंड नहीं होता, तान्हा कभी एंड नहीं होता, ठीक है। He taught that this constant craving could be removed by following moderation in everything. ये कैसे रिमूव हो सकता है? अगर हम हर एक चीज़ में बदलाव लाएं तभी हो सकता है। अपने अंदर बदलाव लाएं, खुश होना सीखें। तो ये कुछ पॉइंट्स आप लिखेंगे जो कि बुद्धा की फाइंडिंग थी। बुद्धा ने कहा कि लाइफ जो है वो फुल ऑफ सफरिंग है एंड अनहैप्पीनेस है। क्यों? क्योंकि हम
हमारे क्रेविंग्स की वजह से एंड डिज़ायर्स की वजह से, हमारे थर्स्ट की वजह से, जो कभी फुलफिल नहीं होता। सो यहाँ तक मैंने आप सभी से बच्चों डिस्कस किया। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा और क्लास मेरी अच्छी लगी होगी। सो प्लीज़ वॉच द वीडियो। थैंक यू सो मच क्लास, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी।